love our babies and they feel it. You wouldn't settle for anything but the best for your baby. So why not the best for their skin? This Atomy CeraBeeb set can be used from birth, although it's specifically formulated to provide an extra ultra-moisturizing protective care for your baby's delicate skin. Its hypoallergenic formula is also dermatologically tested, GMO sensitive, and contains no parabens or phenoxyethanol. CeraBeeb is dedicated to baby's skin protection, formulated with plant-based ingredients to care for your baby's delicate skin. It contains ceramides, and its transparent formula leaves no residue on the skin, keeping your baby's face moisturized and protected for up to 24 hours. So as long as your baby's happy and healthy, nothing else matters. The company that has remained steadfast and kept the right principles. The company headed toward the world with the right principles. The company that grows with its customers and shares generously. We are Atomy. Atomy, which has been growing ever since its establishment in 2009, achieved 2.2 trillion Korean won in global sales in 2021 and surpassed 16 million global members. Atomy's #1 goal of going beyond customer satisfaction to customer success continues to be its top priority to this day. Providing good quality products at reasonable prices, Atomy's competitiveness lies in the nature of distribution. The absolute quality and absolute price product philosophy that Atomy has practiced since its inception is included in all of its products, such as health functional foods, beauty, living, food, fashion, home appliances, and more. Hemohim, which has been the top seller in its industry for 7 consecutive years, has passed 1.7 trillion Korean won in cumulative sales. It has gotten international patents in 21 countries and is forging a unique new path for health functional food products. Absolute Skincare, which has become one of the best-selling cosmetics in the industry with sales of 100 billion Korean won every year since its launch, was recognized for its advanced technology with King Sejong Award from the Korean Intellectual Property Office in 2021, for the first time in the cosmetics industry. The Fame, another luxury cosmetic product reborn with upgraded ingredients and technology, is also loved by consumers as it reflects Atomy's product philosophy. Atomy is practicing customer-centered management in all of its corporate activities, and this was recognized by becoming the industry's first to acquire customer-centered management certification for 2 consecutive years. Starting with the US branch in 2010, Atomy is a global company which opened 22 branches in Asia, South America, Oceania, and Europe, with 16 million members worldwide. Atomy opened branches in New Zealand, Turkey, the United Kingdom, Kazakhstan, and Kyrgyzstan, and is planning to open 20 more branches within the next 5 years. Atomy's GSGS strategy, which stands for Global Sourcing Global Sales, allows the supply of products that align with the absolute quality and absolute price philosophy through Atomy's global sales network. Atomy's Success System, in which the company runs all seminars, allows any member to succeed regardless of individual ability. This is the driving force behind Atomy's distinctive growth.
the next generation of online and offline distribution broadcasters, which presents Atomy's vision to members around the world regardless of time and space. Entertainment and media, which converges business and culture. Atomy provides the vision of a global success system which transcends time and space by providing a variety of services. Atomy provides various support measures for partnering companies such as cash payment within 1 week from delivery, interest-free operating fund loans, and joint quality management systems, among others. These create a culture of accompanied growth. Sharing is a mission that all companies must fulfill. Atomy's executives, employees, partnering companies, and members all practice sharing together to improve the lives of all members of society. Whenever sharing is needed around the world, global branches will be united to support happiness for all. The company that holds true to its principles while creating a new distribution culture. The company expanding globally with the trust of people around the world. The company that dreams of customer success while moving beyond customer satisfaction. The company that cherishes the spirit. We are proud Atomy.
मंजिलें भी जिद हैं, रास्ते भी जिद हैं, देखते हैं कल क्या होगा, आखिर हौसले भी तो जिद हैं। मैं दिलीप सिंह बिस आप सभी का स्वागत करता हूं एटमी इंडिया के इस वनडे सेमिनार में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप सभी को पता है, हम हर सेमिनार की शुरुआत करते हैं कंपनी मोटो के साथ। तो क्या आप सभी तैयार हैं कंपनी मोटो के लिए? यस, चेरिश द स्पिरिट, क्रिएट द विजन, फॉलो द फेथ, सर्व इन ह्यूमिलिटी, कम ऑन, लेट्स डू इट। ये था हमारा कंपनी मोटो। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट सेशन के साथ। पर फर्स्ट सेशन में जाने से पहले मैं आप सभी को हमारी चेयरमैन की जीवनी दिखाना चाहूंगा। तो देखते हैं चेयरमैन की जीवनी। उन्होंने वुसुंग यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पीएचडी की है। साथ ही साथ कोरिया डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत हैं। वर्ष 2019 से वे कई प्रतिष्ठित पदों पे हैं और वर्तमान में WFDSA वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के CEO काउंसिलिंग के सदस्य हैं और वो ड्रीमी हाई स्कूल के प्रेसिडेंट भी हैं। और बड़े सम्मान और गर्व के साथ हम उन्हें वर्ष 2009 से एटमी कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष के रूप में प्रेरणा ले रहे हैं। ये थी हमारी चेयरमैन की बायोग्राफी। इससे प्रेरणा लेते हैं और बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट सेशन की ओर, जो कि है एक Q&A सेशन हमारे चेयरमैन द्वारा। तो आइए देखते हैं। नमस्कार मेरे सारे प्यारे और आदरणीय एटोमियंस को। आज हम एक और Q&A सेशन करने वाले हैं ड्रीमी प्रेसिडेंट पार्क के साथ। आपने एक बार कहा था, अलग स्ट्रोक्स अलग लोगों के लिए, सेंटर तक जाने के लिए या सेल्स स्टाइल। आपने कहा था कि हर एक स्टाइल को सम्मान देना चाहिए। जब बिजनेस को बढ़ाने की बात आए तब ऐसा करना कुछ अनदेखे मुश्किलों को पैदा कर देता है। जब टीम वर्क बनाने की कोशिश करते हैं तब फील्ड में अलग अलग स्टाइल्स के बावजूद हम सबको एक साथ होना होगा सेंटर में और एक ही लक्ष्य की तरफ काम करना है जुनून के साथ। इस मुश्किल को मैं कैसे हल कर सकता हूं? ये था पहला सवाल। मुझे पूरी तरह से पता है कि आप किन परिस्थितियों से गुजरते हैं जब आप अपनी मुश्किलों का सामना करते हैं और एक साथ काम करने की कोशिश करते हैं। अगर आप इसके बारे में ढंग से सोचें, हमारी कोई भी ऐसे इवेंट्स नहीं हैं जो बहुत आसान हो। सिर्फ तभी जब दो अलग तरह के फोर्सेस एक साथ काम करते हैं, एक तरह की एडेड वैल्यू पैदा हो सकती है। इससे मेरा मतलब कुछ इस तरह का है। एटमी में हमेशा एब्सोल्यूट क्वालिटी को माना जाता है और एब्सोल्यूट प्राइस को। ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर्स क्वालिटी गुड्स बेचते हैं पर ऊंचे दामों पर, और कम क्वालिटी की चीजें कम दामों पर। ऐसा ही होता है। आप सोचेंगे कि इस तरह की स्ट्रैटेजी दरअसल आसान होगी, लेकिन उन लोगों का काम दरअसल काफी मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि इस तरह के काम काफी सारे लोग कर रहे हैं, तो उस जगह पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। पर उसी वक्त हमने चुना कि हम एक अनजानी जगह की तरफ बढ़ेंगे। ये बिल्कुल आसान रास्ता नहीं है और इसमें कड़ी मेहनत की जरूरत पड़ती है। इसके बावजूद एक बार चुनने के बाद यह रास्ता सफलता की ओर ले जाएगा। एक ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के दो रास्ते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना ऑर्डरली फैशन में एक सैनिकों के ग्रुप की तरह। मजबूत को रखना और कमजोर को हटा देना मुश्किल नहीं है।
ये दरअसल काफी आसान है और काफी लोग ये तरीका जरूर चुनते हैं। एक और लीड करने का तरीका है लाजे फेयर। ये ज्यादातर कोई ऑर्डर को फॉलो नहीं करते हैं और वो अपने मेंबर्स को जो चाहे वो करने देते हैं, और ये तरीका भी काफी लोग अपनाते हैं और ये भी काफी ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन मेरी नजर से ये दोनों तरीके ही एक तरह की मुश्किल पैदा करते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? लोग हर तरह के ही होते हैं, वो जैसे हैं उसकी आपको इज्जत करनी चाहिए, तब भी जब आप ग्रुप के कॉमन ग्राउंड को देख रहे हों, और उसे एक ऑर्डरली स्ट्रक्चर्ड बॉडी में मिला दे। इस फाइन ट्यूनिंग प्रोसेस को सूझबूझ चाहिए होती है और ये आपको एक एडेड वैल्यू देगी। मैं ज्यादातर लोगों को देखता हूं कि आसान रास्ता चुनते हैं और ज्यादा मुश्किल रास्ते पर जाने के लिए डरते हैं। मैं आपको बताता हूं आसान क्या है। एकदम स्पष्ट तरीके से अपने नियमों को बनाएं। अपने फॉलोअर्स को बताइए कि जो ध्यान दे रहा है वो रहेगा, जो ऐसा नहीं करेंगे वो नहीं रहेंगे। बहुत आसान है ये। अपने मन में जो है वो करिए वाला मेथड एक और बिना एफर्ट के तरीका है अपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का। हमें एकजुट होना होगा और एक साथ जुड़ना होगा और अपने लक्ष्यों को, हर एक इंसान की यूनिकनेस को पहचान कर उसकी इज्जत करनी होगी हमें। ये वो तरीका है जो हमें फॉलो करना है। जब कंपाउंडिंग की बात आती है और हमारे मतभेदों को जोड़ने की बात आए, सबसे बढ़िया जोड़ने वाला तरीका है जिसे हम कहते हैं प्यार। दूसरे शब्दों में भाईचारा और प्यार। हर एक इंसान के अलग हालात के बारे में सोचकर और उन लोगों को कुछ राहत देकर कोशिश कीजिए उन्हें प्रोत्साहित करने की, उन्हें गाइड कीजिए और सफलता की तरफ सही रास्ते पर उनको लीड कीजिए। यही सच्चे लीडर्स करते हैं। मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा एक ट्रू लीडर कैसा होता है। एक सच्चे लीडर को कुछ मुश्किल करने में मजा आना चाहिए। जहां तक मेरी सोच है, मैं अपने एम्प्लॉयज को कहता हूं कि वो कंपनी के रूल्स को फॉलो करें, पर मैं उन्हें रूल्स को ना मानने की सलाह भी देता हूं ताकि वो मेंबर्स के रिक्वेस्ट को पूरा कर सके। मैं ये दोनों ही बात कहता हूं। कंपनी के नियमों का पालन करना बहुत आसान नहीं है जब आप हर एक मेंबर की अलग अलग हालातों को समझने की कोशिश कर रहे हो। ये किसी भी तरह से कोई आसान काम नहीं है। मैं कह रहा हूं और ट्रेन कर रहा हूं हमारे एम्प्लॉयज को ज्यादा केयरिंग होने के लिए और हर एक मेंबर के हालातों की तरफ संवेदनशील होने के लिए, अब पहले से भी ज्यादा। मैं एम्प्लॉयज को कहता हूं कि वो प्यार दिखाएं मेंबर्स की तरफ। दोस्तों, प्लीज इस पर सोचिएगा, इस आइडिया पर कि जब दो अलग अलग चीजें एक साथ होती हैं, हम कुछ ऐसा ढूंढ सकते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो और जिसकी ग्रेट वैल्यू हो। दूसरा सवाल, मैं सुपर सिनर्जी ऑफ यूनाइटेड हार्ट कैसे इंट्रोड्यूस कर सकता हूं और उन कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ कैसे आगे बढ़ सकता हूं जो सिर्फ छोटे लेग्स के बारे में सोचते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो सोचते रहते हैं छोटे और बड़े लेग्स के बारे में। मैं ये सोचता हूं, क्या आपके बिगर लेग में स्टार मास्टर्स और रॉयल मास्टर्स हैं? अगर ऐसा है तो सच में ये एक बहुत बड़ी लेग है। अगर आप इंपीरियल मास्टर बनने की राह पर हैं, जो रॉयल मास्टर और क्राउन मास्टर बनने के बाद आता है, आपके पास बहुत सारे रॉयल मास्टर्स होने चाहिए और स्टार मास्टर्स आपके दोनों लेग्स में। जिनके पास कोई भी मास्टरशिप होल्डर्स नहीं है, अपने बड़े लेग्स में भी उन लोगों को अपने बड़े या छोटे लेग्स के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। उनकी बहुत कम सोच है एटमी बिजनेस की तरफ और उन्हें इस तरह से व्यवहार करना बंद करना चाहिए। मेरे लिए एक छोटा लेग है और दूसरा उससे भी छोटा लेग है। वो दोनों ही छोटे लेग्स हैं। आपको इस बारे में इस तरह से सोचना चाहिए। दोनों के बारे में सोचिए
अपने छोटे लेग्स के रूप में और अपना स्पॉन्सरिंग का काम करते रहिए पूरे वक्त। एक बात है जो आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए, आपको कोई आइडिया नहीं है कि कब आपका स्मॉलर लेग कब आपका बिगर लेग बन जाए। इस बिजनेस में आपको कोई अंदाजा नहीं है कि आप किसके साथ और कब जैकपॉट हिट करें। निष्कर्ष ये है कि आपको अपने दोनों लेग्स के बारे में सोचना चाहिए। काफी सारे सफल रॉयल लीडर्स के बीच में ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं जहां छोटे लेग बड़े लेग्स को पिछाड़ चुके हैं और इसीलिए कहानी पूरी बदल गई काफी बार। हाँ, मैं समझ सकता हूं ज्यादा ध्यान देना छोटे लेग की तरफ, क्योंकि कॉम्पनसेशन उस हिसाब से कैलकुलेट की जाती है। ये बिल्कुल सामान्य है। फिर भी आपको दोनों की तरफ ध्यान देना चाहिए। प्लीज इस अहम बात को दिमाग में रखिएगा। ये मैं आपको इस वजह से बता रहा हूं कि क्यों आपको अपने बड़े लेग्स की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। बाद में जब आपके दोनों लेग्स बड़े हो जाते हैं और आप एक सफल लीडर बन जाते हैं जिसको बहुत बढ़िया कंपनसेशन मिलता है, जब आप बहुत पैसा कमाते हैं, अगर आपके पार्टनर्स आपकी इज्जत नहीं करेंगे, आपकी सफलता असल में सिर्फ आधी ही सफलता है। इसीलिए बहुत सारा पैसा कमाने के साथ आपको एक पूरी तरह से सम्मानीय लीडर बनना चाहिए। जब आपके दोनों लेग्स छोटे होंगे, आपको अपने बड़े लेग को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आपके दोनों छोटे लेग और सबसे छोटे लेग दोनों का ही अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। ठीक है? अगला सवाल। मैं ये काफी बार सुनता हूं, मैं आपको एक लाइन बनाकर दूंगा, मैं आपके लिए एक लाइन का ख्याल रखूंगा। एक बाइनरी बिजनेस को करने का सही तरीका क्या है और किस तरह से अपने ऑर्गेनाइजेशन को चला सकते हैं? वाह, क्या बढ़िया सवाल है ये। मुझे लगता है इसके बारे में सही तरह से समझाने के लिए मुझे चॉक बोर्ड पर ड्रॉ करना पड़ेगा। अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने का बढ़िया तरीका। मेरा मानना है कि ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जो सबसे सटीक तरीका हो। मैं आपको बताता हूं जिस चीज के बारे में सबसे ज्यादा बात हुई है। ये कुछ ऐसा है, मैंने सुना है कि एक चीज है जिसे कहते हैं स्पॉन्सर लाइन। स्पॉन्सर लाइन को ओरिजिनल लाइन भी कहा जाता है, जिसका ख्याल पूरी तरह से स्पॉन्सर रखेगा। इसीलिए आपको सिर्फ ये करना है कि आप बी लाइन का ख्याल रखें और बाकियों का अपने आप ध्यान रखा जाएगा। ये इंसान यहां दूसरों को भी यही बात कहता है। आपको सिर्फ एक लाइन का ध्यान रखना है, बाकी सब ऑटोमेटिक है। इस केस में ये इंसान इस लाइन का ध्यान रखेगा इस तरह से, और ये इंसान यहां इस ओरिजिनल लाइन का ध्यान रखेगा इस तरह से। ये लाइन यहां एक और ओरिजिनल लाइन बन जाती है इस इंसान से, और ये इंसान यहां अपनी ओरिजिनल लाइन का ध्यान रखेगा और एक और जने को कहता है कि अपने सिर्फ ओरिजिनल लाइन का ध्यान रखे। पहली नजर में ये दरअसल बहुत बढ़िया आइडिया दिखता है। ये इंसान यहां इस तरह से आगे बढ़ता है और ये इंसान इस तरह से आगे बढ़ता है और ये इंसान आगे बढ़ता जाता है और ये इंसान सफल हो जाता है, ये इंसान सफल हो जाता है, ये इंसान सफल हो जाता है, ये भी सफल हो जाता है और ये भी सफल हो जाता है, और ये इंसान निकल जाता है इस तरफ अपनी ओरिजिनल लाइन के साथ, और वो सिर्फ अपनी ओरिजिनल लाइन का ध्यान रखेगा। लोग सोचते हैं कि इस तरह से काम चलता है। लोग सोचते हैं कि ये दरअसल एक लाइन की मार्केटिंग है, जो कि बाइनरी मार्केटिंग करने से काफी आसान लगता है। ये एक बहुत ही लुभावना तरीका हो सकता है। ये इतना लुभावना लगता है कि काफी लोग इस जाल में फंस जाते हैं। इस वजह से मैं इसे डिटेल में समझाऊंगा। क्या मुश्किलें आ सकती हैं इसको इस तरह से करके। कोरिया की नेटवर्क मार्केट हिस्ट्री में ये कुछ होने वाली मुश्किलें हैं जो इस तरह का काम पैदा कर सकता है। मान लीजिए कि पर्सन ए को कहा गया कि एक लाइन का ध्यान रखा जाएगा और उसे सिर्फ अपनी लाइन का ध्यान रखना है।
पर्सन ए की लाइन बहुत आसानी से नीचे गई इस तरह, क्योंकि उसे सिर्फ एक लाइन के बारे में सोचना था। उसका ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो गया और बहुत ही बढ़िया तरीके से उसका विस्तार हो गया। चलिए एक और स्पॉन्सर के नजरिए से इसे देखते हैं। यहां इसके पास एक बी लाइन होनी चाहिए थी। यहां जरूर उसकी बी लाइन इस तरह बनी होगी। जब स्पॉन्सर की लाइन यहां पर अच्छा काम कर रही है, क्या वो ज्यादा लोग जोड़ेगा इस लाइन पर, या वो ज्यादा लोगों को जोड़ेगा वहां अपनी बी लाइन पर? यह बात साफ है कि बी लाइन पर ज्यादा लोगों को जोड़ने पर उसके लिए ज्यादा लाभ होगा। अगर ऐसा होता है, वो इंसान जो इस लाइन का यहां ध्यान रख रहा था, ये मानकर कि ये लाइन बड़ी है और अब स्पॉन्सर की लाइन को अचानक एक अनदेखे मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, उस इंसान के लिए ये लाइन बन जाती है बिगर लेग और ओरिजिनल लाइन छोटी लाइन बन जाती है। उसे कहा गया था कि स्पॉन्सर्स लाइन ओरिजिनल लाइन है और बड़ी लेग है और उसे दूसरे लाइन पर फोकस करना है, पर अब उसे इस तरह की मुश्किल हो रही है। आखिर में जो दूसरा स्पॉन्सर था और पर्सन ए लड़ने लग जाते हैं, जिससे ये पूरी चीज ध्वस्त हो जाएगी कुछ बहुत मुश्किल हालातों में। ठीक है, मैं इस लाइन के साथ जुड़ा रहूंगा। अगर तुमने अपनी बात नहीं रखी, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। वो दुश्मन बन जाते हैं और हालात और बिगड़ जाते हैं, जिससे कि मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। ये दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। दरअसल ये हालात हुए जब इस इंसान की लाइन अच्छी बन गई, इस इंसान की लाइन बड़ी हो गई, पर उसे कहा गया था कि ओरिजिनल लाइन गारंटीड होगी। फिर भी इस तरह की मुश्किल से बचा नहीं जा सका। एक और मुश्किल जो हो सकती है इन हालातों में, ये कि ओरिजिनल लाइन बड़ी हो जाती है पर आपकी लाइन नहीं, क्योंकि आपकी लाइन बड़ी नहीं होती, आप कोई पैसे नहीं बना रहे, जिससे और ज्यादा मुश्किलें पैदा होती हैं। एक और सबक, शुरू करने के लिए यह कोई अक्लमंद तरीका नहीं है। इस बढ़िया से संतुलित ग्रुप के बीच और ये यहां पर उल्टी हुई ग्रुप, अगर इन दोनों ग्रुप का सेल्स एक बराबर हो, क्या ग्रुप ए या ग्रुप बी ज्यादा कॉम्पनसेशन लाएंगे अपने मेंबर्स के लिए? ग्रुप ए के मेंबर्स या ग्रुप बी के मेंबर्स? साफ तौर पर ग्रुप बी के मेंबर्स। और मैं आपको बताता हूं क्यों। इस इंसान को कोई कंपनसेशन नहीं मिलता, इसको कोई कंपनसेशन नहीं मिलता, इसको भी नहीं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको कोई कंपनसेशन नहीं मिलता, पर उसी समय इस इंसान को कंपनसेशन मिलता है, इसको भी, और इसी तरह आगे भी। और इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जिनको कंपनसेशन मिलता है। इस ग्रुप में कुल लोग जिनको कंपनसेशन मिलता है वो ज्यादा है, तो ये बढ़ सकते हैं एक साथ मिलकर और दूर तक एक दूसरे को संभाल सकते हैं। ठीक उसी वक्त ये ऑर्गेनाइजेशन समय के साथ आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि मेंबर्स को अपनी मेहनत का कुछ नहीं मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस तरह से बिजनेस करना बिल्कुल ही व्यर्थ है और सिर्फ एक लाइन पर निर्भर करना मेन लाइन के तौर पर बहुत ज्यादा फलदायक नहीं है। इसके बजाय जब एक स्पॉन्सर और एक पार्टनर एक दूसरे के साथ मिलकर मेहनत करके एक संतुलित ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, काम बहुत ही आसानी से होता रहेगा। एक और ध्यान देने वाली चीज, इन हालातों में याद रखने के लिए, कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जिनको महसूस होता है कि उन्हें भरना होगा इन खाली जगहों को और लाइनों को जोड़ना होगा ताकि ये एक कंप्लीट मैट्रिक्स की तरह दिखे। ये एक और बहुत सामान्य तरीका है इस सब को बिगाड़ने का। दूसरे शब्दों में, आप फ्रेम करेंगे अपने स्ट्रक्चर को एक तरह से और हर स्पॉट को नंबर देंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। स्पॉन्सर नए लोगों को उनकी जगहों के हिसाब से अपनी सही जगह पर रखते रहेंगे। ये एक और बिल्कुल बेवकूफी भरा तरीका है बिजनेस करने का। ये बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं है। हाँ,
और ये आखिरकार जरूर फेल होगा। आप एक बैलेंस तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करना चाहेंगे, एक पेड़ की तरह जिसकी टहनियां बाहर की तरफ बढ़ती हैं। आपको इसे नेचुरल तरीके से बढ़ने देना चाहिए। हर एक लाइन को भरने की जल्दबाजी मत कीजिए या इसे एक परफेक्ट मैट्रिक्स बनाने की कोशिश मत कीजिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है। इन दोनों में से कोई भी तरीका प्रभावशाली नहीं है। अपने ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने के लिए आपके पास 2 लोअर मास्टर्स होने चाहिए, आपके दोनों लेग्स पर। यह दरअसल बहुत स्मार्ट तरीका है काम करने का। उदाहरण के लिए, डायमंड मास्टर बनने के रास्ते पर आपके पास एक सेल्स मास्टर होना चाहिए यहां और एक और सेल्स मास्टर यहां। इस तरह आपके पास 2 सेल्स मास्टर्स होने चाहिए हर एक लेग में। यहां पर 2 सेल्स मास्टर्स लगाने की वजह से और वहां पर 2 सेल्स मास्टर्स लगाने की वजह से इस चीज का डर रहता है कि दोनों में से कोई एक निकल जाएगा। इसीलिए आपका लक्ष्य होना चाहिए यहां पर सबका अच्छे से ख्याल रखना। यहां पर जितने ज्यादा मास्टरशिप होल्डर्स होंगे उतना अच्छा है। यहां दरअसल आपको ऐसा करना चाहिए, 4 ऐसे अच्छे होने वाले लीडर्स को ढूंढिए अपने हर एक लाइन में और एक तरीका ढूंढे एक साथ सफलता हासिल करने का, और इस तरह से टीम वर्क को डेवलप कीजिए। इस लाइन के लिए भी यही बात है। जब ये सही तरीके से नीचे जा रहा है, आपको कोई यहां मिलेगा और आपको कोई यहां पर मिलेगा, जिससे कि आप अच्छी सी टीम बना सके। आपको एक दूसरे की तरफ एक अच्छी समझ होनी चाहिए ताकि आप सब एक ही रास्ते से चलकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। इसका मतलब नहीं है कि आप बेफिक्र रहें और इन लोगों को यहां फेंक दें। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा। इस इंसान के अच्छा करने के लिए इसकी ये लाइन बहुत बढ़िया से यहां नीचे जानी चाहिए और वो लाइन वहां उसको भी नीचे जाना चाहिए। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप क्या करेंगे कि ताकि ये इंसान यहां और ये इंसान यहां सफल हो सके। आपको देखना होगा पूरे नेटवर्क को सूझबूझ के साथ इसको ढंग से चलाने के लिए। लेकिन एक बार जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, चीजें आपके लिए काफी कठिन हो सकती हैं। इस वक्त एटमी का सक्सेस सिस्टम काम आता है। आप सब कुछ खुद ही नहीं कर सकते हैं, तो आपको इस्तेमाल करना चाहिए हमारा सिस्टम। सक्सेस एकेडमी के साथ 1 दिवसीय सेमिनार्स या सेंटर मीटिंग्स जो हर दिन होती है, आप उनको उस सेमिनार में ले जा सकते हैं, जिसके लिए वो सफल हो पाएंगे आपके लिए। बात सही है ना? Q&A ड्रीमी हानगिल पार्क के साथ। मैं उम्मीद करता हूं कि फिर से आपको कुछ फायदा हुआ हो। अब सिर्फ 1 महीना रह गया है, वक्त सच में उड़ जाता है। उम्मीद है आपका क्वार्टर अच्छा जाएगा और नई एनर्जी के साथ आइए नए साल में दोबारा मिलेंगे। और ये था Q&A सेशन हमारे चेयरमैन द्वारा। आशा करता हूं आपने इस Q&A सेशन से सभी ने प्रेरणा ली होगी। और इसी के साथ हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन की ओर, जो कि लेंगे हमारे एक मास्टर। तो देखते हैं हमारे उन मास्टर की सक्सेस जर्नी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नवाब बेग, इंदौर MP मध्य प्रदेश से हूँ और मैं आज एटॉमी में एज ए डायमंड मास्टर हूँ। और मैं आज आप लोगों को थोड़ी सी मेरी जर्नी के बारे में भी बताऊंगा कि क्या हुआ, मैंने क्यों इसको सिलेक्ट किया। तो दोस्तों, इसको सिलेक्ट करने का एक बहुत बड़ा और बहुत इम्पॉर्टेंट कारण था। मैं थक गया था, मुझे करना नेटवर्क मार्केटिंग था, डायरेक्ट सेलिंग ही करना था, लेकिन मैं थक गया था कुछ छोटी छोटी कंपनी को करके। और वो वही होता है ना कि ऊपर चलते हैं और थोड़े दिन बाद में वापस नीचे आ जाते हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए मैंने इस कंपनी को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद में एक सिलेक्ट करने का पैरामीटर होता है, मैंने इसके 4P चेक किए। 4P इस कंपनी की प्रोफाइल मैंने चेक करी, जो मुझे बेहद पसंद आई। मैंने इसका प्रोडक्ट मंगवाया, वो चेक किया, मुझे बेहद पसंद आया।
फिर मैंने इसका प्लान और पे आउट देखा। ये जब चारों चीज़ देखी तब मुझे समझ में आया कि ये प्रोडक्ट, ये कंपनी जो है वो लाजवाब है। दोस्तों, मैं अगर इसको बात करूं तो इस तरह से कैलकुलेट करता हूं कि आप एक गाड़ी परचेस करते हैं और उस गाड़ी की अगर एक अल्टो आपने परचेस करी और उस गाड़ी की कीमत अगर उस गाड़ी की हम बात करें तो उसकी स्पीड जो है अगर 180 किलोमीटर की है, तो वो अगर उस गाड़ी के चारों पहिए प्रॉपर नहीं हैं, चारों पहिए प्रॉपर नहीं हैं, तो वो उस स्पीड पे नहीं चल पाएगी। उसी तरह से अगर हमने कोई कंपनी सिलेक्ट करी और उसके चारों पी सही नहीं है, तो वो उस स्पीड पे नहीं चल पाएगी जिस स्पीड के लिए वो कंपनी या वो गाड़ी बनी हुई है। तो मैंने ये चारों चीज़ें चेक करी और चेक करने के बाद में बड़ा सोच समझ के, इंतज़ार करने के बाद धैर्य के साथ इसमें काम करना शुरू किया। लोग बाग मेरे को बोलते थे कि सर अब्रॉड की कंपनी है, प्रोडक्ट महंगे होंगे। तो मैं दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा, प्रोडक्ट महंगे सस्ते नहीं होते। एक बात समझिएगा, मेरे एक पड़ोसी का एग्जांपल देता हूँ। मेरे पड़ोस में एक व्यक्ति रहते थे और उन्होंने एक अच्छी गाड़ी परचेस करी। अनफॉर्चुनेटली अच्छी गाड़ी परचेस करने के बाद में उनका एक एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में वो गाड़ी खाई में गिर गई थी। खाई में गिरने के बाद में भी, क्योंकि वो उन्होंने अच्छी गाड़ी परचेस करी थी और सारे पैरामीटर देख के परचेस करी थी, और उसके एक्सीडेंट के होने के बाद में भी वो बच गए थे। खाई में गिरने के बाद बच गए थे। अगर यही उन्होंने सस्ती परचेस करी होती तो वो इस दुनिया में नहीं होते। जैसे ही वो उनकी गाड़ी से उनको बाहर निकाला गया, जब वो बाहर निकल के आए तब उनके साथ में उन्होंने नेक्स्ट डे सेम गाड़ी वापस से परचेस करी। क्यों? रीज़न यही था कि उस गाड़ी ने उनकी लाइफ सेव करी। कोई भी छोटी गाड़ी भी अगर कोई हम लेते हैं और उसमें व्यक्ति जो है उसको वो कंफर्ट नहीं मिलता, जिस पर्पस के लिए उसने वो चीज़ परचेस की होती है वो पर्पस उसका हल नहीं होता। तो इन्होंने अगर परचेस करी थी तो ये देखकर, सेफ्टी देखकर परचेस करी थी और उसका उनको 100% पूरा बेनिफिट मिला। इसी टाइप से मैं लोगों को ये कहता हूँ कि भाई 11/11/2020 में अगर कंपनी ने इंडिया में पोर्टल लॉन्च किया और लॉन्च करने के बाद में मैंने जहाँ से मैं प्रोडक्ट लेता था मैंने वो प्रोडक्ट लेना बंद किए और इस पोर्टल से, क्योंकि ये मेरा खुद का व्यवसाय था, ये मैं खुद इसका बिजनेस ओनर था और मैंने ये प्रोडक्ट यहाँ से लेना स्टार्ट किया। लेने स्टार्ट करने के बाद में 11/11/2020 के बाद में मैंने कभी भी जो प्रोडक्ट एटॉमी बनाती है उसके अलावा मैंने कोई सा भी प्रोडक्ट मार्केट से कभी भी परचेज नहीं किया, क्योंकि मुझे एक बात मालूम था, सबसे पहले मैं इस प्रोडक्ट को यूज़ करूंगा। अब जब तक मैं प्रोडक्ट यूज़ नहीं करूंगा मैं दूसरे को रिकमेंड कैसे कर सकता हूं? तो मैं सेटिस्फाई होऊंगा तभी किसी को रिकमेंड कर पाऊंगा। तो मैं इसके प्रोडक्ट को लिए और सेटिस्फाई हुआ, इसके बाद ही मैंने किसी को बताना शुरू किया। तो दोस्तों, जो लोग ये बोलते हैं कि प्रोडक्ट महंगे सस्ते हैं, तो मैं उनसे एक छोटा सा बात पूछता हूँ और मैं मेरे डिसीजन के बारे में पूछता हूँ कि क्या मेरा डिसीजन सही था या वो डिसीजन सही नहीं था। तो उस 2020 के बाद, 11/11/2020 के बाद मैंने इससे प्रोडक्ट परचेस किए। हो सकता है क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे प्रोडक्ट है तो कॉस्ट थोड़ी बहुत तो ऊपर नीचे होगी, क्योंकि अच्छे और बुरे प्रोडक्ट में, अच्छे या नॉर्मल प्रोडक्ट में फ़र्क तो रहता है, बेनिफिट, राइट। तो मैंने उस व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति ने एटॉमी के प्रोडक्ट नहीं परचेस किए होंगे, क्या किया होगा? ज़्यादा से ज़्यादा एक ही काम किया होगा, उसने किसी प्रोडक्ट पे 50 रुपये बचा लिए होंगे, किसी प्रोडक्ट पे उसने 100 रुपये बचा लिए होंगे, किसी प्रोडक्ट पे 150 भी बचा लिए होंगे। लेकिन उसका अगर मैं देखूं तो 1 साल के अंदर उसने कितना पैसा बचा लिया होगा? ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अगर बचा लिया होगा तो 5,000, बहुत ज़्यादा बचा लिया होगा तो 10,000। लेकिन मैंने 11/11/2020 के बाद जब से सस्ते प्रोडक्ट, या फिर मैं बात करूं केमिकल वाले प्रोडक्ट यूज़ करना बंद किए और नॉन केमिकल एटॉमी के प्रोडक्ट यूज़ करना स्टार्ट किए, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट स्टार्ट किए यूज़ करना, मैंने 11/11/2020 से लेकर आज लगभग 25 लाख रुपए अर्न किए। किसका डिसीजन सही था? वो 10,000 रुपये बचाना या 25 लाख रुपए कमाना? डिसीजन आपका है दोस्त। आप ब्रांड यूज करना चाहेंगे
तो अगर ब्रांड यूज़ करना चाहेंगे तो एटॉमी है, वो आपको वैल्यू फॉर द मनी भी देती है। और महंगे की बात करें तो कतई भी महंगे नहीं है प्रोडक्ट। मैं बात करूं एक एटॉमी के हमारे टूथपेस्ट के बारे में, तो अगर कोई प्रोडक्ट की कॉस्ट 343 रुपये, एग्जैक्ट कॉस्ट की बात कर रहा हूं मैं, 343 रुपये का अगर वो प्रोडक्ट पड़ता है, और अगर मैं इंडिविजुअल उस प्रोडक्ट को यूज़ करता हूं, क्वालिटी वाला प्रोडक्ट यूज़ करता हूं, तो वो मुझे लगभग मुझे 4 से 5 महीने चलता है। अगर मैं 4 से 5 महीने एक प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा हूँ और क्वालिटी वाले प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा हूँ, तो कितना पैसा मैंने मंथली उसमें लगाया? 60, 70, 80, 90 रुपये? क्या ये बहुत ज़्यादा पेमेंट हो गया? नहीं दोस्तों, मैंने लेकिन क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मैं अगर कोई सस्ता प्रोडक्ट यूज़ करता और फिर दौड़ लगाता किसके पास? डॉक्टर के पास, दर्द भी सहता और डॉक्टर से इलाज भी करवाता, तो दोनों चीज़ों का नुकसान होता। यहाँ पर मैंने क्वालिटी प्रोडक्ट भी यूज़ किया जिससे मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाई भी हूँ, और मैं डॉक्टर के पास जाने से भी बचा, और आज नहीं आगे के लिए भी बचा। सो इसी हिसाब से अगर मैं देखूँ तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिसको मैं यूज़ करता हूँ और मैं क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। दोस्तों, ब्रांड होता है, ब्रांड होता है, तो मैं ब्रांड यूज़ करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ब्रांड यूज़ करने के लायक हैं। आप लोग भी ब्रांड यूज़ करें। महंगा सस्ता दोस्तों कुछ नहीं होता। चाहत अगर होती है कि बड़ा करा जाए तो यहाँ पर बहुत बड़ा किया जा सकता है। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात कहता हूँ, एटॉमी अभी सिर्फ और सिर्फ 1.25 साल का बच्चा है। दोस्तों याद रखिएगा कि ये जब 2 से 3 साल का जब इसको टाइम हो जाएगा, तब ये एक बहुत बड़े मुकाम पे जाने वाला है। और उसके लिए आज जैसे मैंने प्लॉट पहले से बुक कर लिया था, यानी मैंने नक्शे पे प्लॉट बुक कर लिया था, सेम की सेम आप लोगों के साथ में होने जा रहा है। अगर आज आप लोगों ने अपनी टीम बना ली, आज आप लोगों ने काम कर लिया, तो आने वाले समय में जो GS के प्रोडक्ट आने वाले हैं, तो आप याद करेंगे कि उस प्रोडक्ट को यूज़ कर पाएंगे और उनकी क्वालिटी का जो है बेनिफिट ले पाएंगे। और दोस्तों, जब वो प्रोडक्ट आएंगे इंडिया में, यकीन मानिए ना इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी उसके ऊपर, पहली चीज़, और ना ही कोई लॉजिस्टिक चार्ज लगेगा कोरिया से यहाँ तक लाने का। तो वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव रहेंगे, आपके बजट में 100% आएंगे। क्वालिटी से एटॉमिक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती दोस्तों, कभी नहीं करती। तो ये प्रोडक्ट जो आपके अपने हमारे इंडिया से ये प्रोडक्ट बनेगा और GS पे ये प्रोडक्ट बनेगा, और ये प्रोडक्ट जब अब्रॉड में जाएगा, तो दोस्तों ये सोचिए कि हमारे हिंदुस्तान का नाम कितना होगा और हम यहाँ से रेवेन्यू कितना जनरेट कर पाएंगे। पूरे जो देशों में हम 22 कंट्री में आज की डेट में हम लोग हैं, तो वहाँ पर इस प्रोडक्ट को पहुँचा पाएंगे। और हम तब सच्चे मायने पे, अगर सच्चे मायने पे बात करेंगे, तो हम सच्चे मायने पे अपने इंडिया का नाम रोशन करेंगे, रेवेन्यू बाहर से लेके आएंगे। दोस्तों, तो मैं आप लोगों से कहता हूँ, आज की डेट में, इस पीरियड में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो, अपनी टीम को उस जोश के साथ बनाइए, और जितनी बड़ी जिसकी टीम होगी उतना बड़ा उसका पे आउट होगा। सो दोस्तों, मैं अपनी इन्हीं बातों को आपके सामने रख के आपसे विदा चाहता हूँ, और आप लोगों को एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ दोस्तों, ये राइट समय है, सही समय पे, सही जगह पे, सही लोगों के साथ में हैं आप। यानी आप एटॉमी में अगर हैं तो सही जगह पे, सही समय पे और सही लोगों के साथ में हैं, राइट। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़िद से, जोश से, जुनून से भरपूर होके एटॉमी को करें। थैंक यू। जिस काम में काम करने की हद पार ना हो, वो काम किसी काम का नहीं। ये थी हमारी मास्टर की सक्सेस जर्नी। आशा करता हूँ आपने इस सेशन से प्रेरणा ली होगी। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन की ओर, जो कि हमारा प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन। तो आइए देखते हैं। हेलो एटॉमियंस, माय नेम इज श्वेता मिश्रा, और आज की टॉपिक है एटमी पोमीग्रेनेट मिक्स्ड फ्रूट जेली। पोमीग्रेनेट
पोमीग्रेनेट यानी अनार, और अनार से जुड़ी एक पुरानी कहावत है जो अक्सर हम लोग सुना करते हैं। जी हाँ, एक अनार 100 बीमार। ये कहावत अपने आप में अनार की क्वालिटी को बतलाता है। ये कहावत बनी कैसे होगी, इस बात को समझने की कोशिश करें तो पता चलेगा ये कहावत इसलिए बनी होगी क्योंकि शायद एक अनार में 100 डिसीज क्योर करने की ताकत होती है, और इसीलिए अनार को पावर फ्रूट्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी मिनरल्स और विटामिन्स जैसे विटामिन ए, सी, ई एक्सेट्रा होती है, और जैसे कि इसका कलर है जो कि हमारे ब्लड के कलर से मिलता है। ये हमारे बॉडी के अंदर प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन एंड ब्लड के फंक्शन में भी मदद करता है। आज का सेशन अनार पे है, बल्कि वन ऑफ द फैंटास्टिक प्रोडक्ट एट माई बिजनेस दैट इज एटमी पोमीग्रेनेट मिक्स्ड फ्रूट जेली पर है। तो चलिए एटमी पोमीग्रेनेट मिक्स्ड फ्रूट जेली पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सब लोगों का ध्यान 2 बातों पर ले जाना चाहूंगी। जैसा कि हम सभी को पता है कि फूड इज अ मेडिसिन एंड बॉडी आर सेल्फ हीलिंग डिवाइस। टेक्निकली हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में सेल्फ हीलिंग डिवाइस इनबिल्ट होती है। जैसे जब भी हमें छोटी मोटी चोट लगती है तो वो खुद ही ठीक हो जाती है, लेकिन बड़ी बीमारी जैसे बीपी, डायबिटीज, थायराइड, अल्सर, कैंसर एक्सेट्रा में ये इनबिल्ट हीलिंग डिवाइस क्यों नहीं काम करती है? तब हमारी बॉडी खुद को हील करने में क्यों असमर्थ हो जाती है? इसका बहुत बड़ा रीज़न है हमारे इनबिल्ट हीलिंग डिवाइस के कुछ वेपन्स, हथियार होती है। क्या है ये वेपन्स? हमारी इम्यून सिस्टम। हमारी बॉडी को क्या क्या चाहिए इस वेपन को तैयार करने के लिए? जी हाँ, विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, एंजाइम्स। ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी में ही बनती है, और इन सब चीज़ों की हमारी बॉडी को ही बनानी होती है। बट वो बनेगी कैसे? बनेगी हमारे फूड से। फॉर एग्जाम्पल, हमें कोई डिजीज़ है और हमारी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट की ज़रूरत है। अब ये एंटीऑक्सीडेंट कहाँ से आएगी? हमारे फूड से। हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम ही हमारी वेपन है। जब हमारी इम्यून सिस्टम किसी डिजीज़ से लड़ने जाती है और वो डिजीज़ क्योर नहीं हो रही है, इट मीन्स हमारी सेना तो जा रही है डिजीज़ से लड़ाई करने, बट उनके पास प्रॉपर वेपन्स नहीं है। प्रॉपर वेपन्स मीन्स विटामिन्स, मिनरल्स, एंजाइम, एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। जब हमारे सैनिक के पास अपग्रेडेड वेपन्स नहीं है, तब हमारे सैनिक धराशायी हो ही जाएंगे। Now just imagine a situation कि आप बिल्कुल ठीक है, आपको कोई बीमारी नहीं है, आपकी बॉडी में कोई डिजीज़ नहीं है, फिर भी मेंटेनेंस के लिए, फ्यूचर में डिजीज़ से बचे रहने के लिए आपको कंटिन्यूस प्रॉपर फूड सप्लाई का होना ज़रूरी है, क्योंकि स्टिल यू नीड टू मेंटेन योर इम्यून सिस्टम एंड कीप इट इन अ गुड ऑपरेटिव कंडीशन। नाउ imagine a different situation wherein हमारी बॉडी की फूड हैबिट, हमारी बॉडी हमारे फूड हैबिट से ठीक नहीं हो रही है। इसका 2 रीज़न हो सकता है। पहला, हमारे फूड में कुछ मिसिंग है जिसकी ज़रूरत हम आपकी बॉडी को है, और दूसरा, फूड तो प्रॉपर है लेकिन वो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है और रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है।
और कंसिक्वेंटली वो डिफरेंट ऑर्गन में नहीं पहुंच पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बादाम, वॉलनट, ड्राई फ्रूट्स खा लिया क्योंकि हमें पता है कि ड्राई फ्रूट्स इज अ गुड फॉर हेल्थ। बट यहाँ सवाल ये है कि क्या हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है? बैड डाइजेस्टिव सिस्टम में जब हम बादाम, वॉलनट जैसे ड्राई फ्रूट्स लेंगे तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसको हैंडल नहीं कर पाएगी। हेल्दी रहने के लिए हमें पहले अपनी बॉडी की लैंग्वेज को समझना होगा। तो क्या ये एटमी प्रोडक्ट, एटमी, पोमीग्रेनेट, मिक्स्ड फ्रूट जेली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को तंदुरुस्त बनाता है? क्या ये प्रोडक्ट हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को प्रॉपर तरीके से काम करने में हेल्प करता है? क्या ये प्रोडक्ट हमारे बॉडी के अंदर हार्मोनल बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्पफुल है? क्या ये प्रोडक्ट हमारे बॉडी में होने वाले बहुत से बीमारियों के होने से को रोकता है? क्या ये प्रोडक्ट हमारे स्किन लेयर पे भी काम करता है? और इस तरीके से बहुत सवाल आपके मन में आ सकता है। तो मैं बता दूं कि इन सारे सवालों का जवाब हाँ है। और वो कैसे है, मैं आने वाले 10 मिनट में एक एक करके बताऊंगी। आप सभी लोगों ने फ्री रेडिकल के बारे में सुना होगा और शायद ये भी पता होगा कि हमारे इम्यून सिस्टम इस फ्री रेडिकल के थ्रू बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन से लड़ने, उसे रोकने में मदद भी करती है। लेकिन यही फ्री रेडिकल का बैलेंस हमारी बॉडी में जब बिगड़ जाता है तो ये हमारी बॉडी के लिए ही हार्मफुल हो जाती है और ये हमारे बॉडी के अंदर ही हमारा दुश्मन बन जाता है, जिसके कारण हमें मेजर डिजीज हो सकती है, लाइक कैंसर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, थायराइड एक्सेट्रा। ये फ्री रेडिकल को ब्रेन किलर भी बोला जाता है क्योंकि इसके कारण अल्जाइमर एंड पार्किंसन जैसे डेंजरस डिजीज भी हो सकती है। ये फ्री रेडिकल्स कैसे ये हमारे बॉडी के अंदर हमारे सेल्स, ऑर्गन को नुकसान पहुंचाती है, एक बार फिर से मैं बता दूं कि फ्री रेडिकल आर ऑक्सीजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स विद एन अनइवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्री रेडिकल एक ऐसा एटम है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसा एटम जो अनस्टेबल एंड रिएक्टिव होता है। वो इमीडिएटली दूसरे इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है सो दैट उनका पेयर बने और वो स्टेबल हो सके। फ्री रेडिकल एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए इतना डेस्परेट होता है कि वो दूसरे सेल पर अटैक करता है और एक इलेक्ट्रॉन लेते ही स्टेबल भी हो जाता है। बट जिस सेल से इस फ्री रेडिकल ने इलेक्ट्रॉन लिया है उस सेल को डैमेज कर देता है, मीन्स फिर वहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है। अब वो फ्री रेडिकल बन जाता है और इन टर्न वो दूसरे सेल पर अटैक करता है। इस तरह से चेन रिएक्शन स्टार्ट होता है। अगर वक्त रहते इसे कंट्रोल ना किया जाए तो ये हमारी बॉडी को डैमेज कर देती है। अब सवाल ये है कि ये फ्री रेडिकल हमारे बॉडी में बनती कैसे? During digestion and absorption of nutrient from small intestine, न्यूट्रिएंट सेल में जाते हैं जहाँ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एनर्जी रिलीज होता है, उसी वक्त ये फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होता है। फ्री रेडिकल आयरन में जंग लगने जैसा होता है। इसको एजिंग कहते हैं कि आपकी उम्र बढ़ रही है। फ्री रेडिकल बॉडी के किसी भी पार्ट में चिपक जाता है, ब्लड, मसल्स, एनी ऑर्गन, कहीं भी।
साथ ही अगर आप अल्ट्रा वायलेट रेज में ज़्यादा रहते हैं, स्मोकिंग, ड्रिंक करते हैं, या एयर पॉल्यूशन ज़्यादा है, या फूड के थ्रू पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, जंक फूड खा रहे हैं, तो उससे भी फ्री रेडिकल ज़्यादा बनते हैं। जंक फूड में जिसमें ट्रांस फैट या शुगर ज़्यादा हो, या पॉली अनसैचुरेटेड फैट ज़्यादा हो। एक बार फिर से मैं क्लियर कर दूं कि फ्री रेडिकल तभी हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है जब उसकी बैलेंस बिगड़ जाती है, और उसे रोकने के लिए हमारी बॉडी में सफिशिएंट एंटीऑक्सीडेंट नहीं होता है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा के स्टेबल करता है, और चेन रिएक्शन जो स्टार्ट होने वाला होता है वो रुक जाता है। एंटीऑक्सीडेंट के लिए हमें ऐसा फूड लेना चाहिए जिसमें विटामिन ए, सी, ई और अदर मिनरल्स हो, जैसे सेलेनियम एंड मैग्नीशियम। आज का प्रोडक्ट एटमी पोमीग्रेनेट मिक्स फ्रूट जेली भी अपने आप में एक एंटीऑक्सीडेंट है। तो ऑक्सीजन कम होने से जो बॉडी में फ्री रेडिकल बन रहा है और जो नुकसान हो रहा है या हो सकता है, उससे आपको बचाएगा। पोमीग्रेनेट मिक्स्ड में ढेरों एंटीऑक्सीडेंट हैं जो अपना एक इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल को दे देगा और उससे स्टेबल कर देगा, जिससे हमारा बॉडी डैमेज होने से बच जाएगा। अब सवाल ये है कि यदि एंटीऑक्सीडेंट अनार या किसी और वेजिटेबल में होता है तो हम लोग वही क्यों ना खाएं? तो मैं बता दूं कि एटमी ने डेंस क्वांटिटी में पोमीग्रेनेट मिक्स से विटामिन्स निकाला है। उतने विटामिन्स के लिए हमें 20-30 पोमीग्रेनेट खाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। एटमी ने पोमीग्रेनेट मिक्स फ्रूट जेली के लिए बेस्ट क्वालिटी टर्की के पोमीग्रेनेट को यूज़ किया है और उससे एलर्जिक एसिड को एक्सट्रैक्ट कर जेली फॉर्म में बनाया है। शायद आप ये भी जानना चाहेंगे कि अंटालिया टर्की से ली गई पोमीग्रेनेट मिक्स्ड फ्रूट्स जेली को बनाने का प्रोसेस क्या है। एक्चुअली एटमी पोमीग्रेनेट मिक्स फ्रूट जेली 30 स्टेप्स पेटेंट मेथड से बनाई जाती है। इसमें कुछ प्रोसेस बताना चाहूँगी। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अंटालिया टर्की की पोमीग्रेनेट को लेती है, कटिंग एंड पीलिंग करती है, उसके बाद उसको कंप्रेस करके स्टरलाइज करती है। स्टरलाइजेशन के बाद एंजाइम ट्रीटमेंट देती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एंजाइम ट्रीटमेंट। एंजाइम ट्रीटमेंट से पोमीग्रेनेट के अंदर पाई जाने वाली एसिड, जिसे एलर्जिक एसिड कहते हैं, मैक्सिमम एक्सट्रैक्शन हो जाता है। नॉर्मली आप पोमीग्रेनेट खाते हैं तो बहुत सारी चीज़ उसके सीड के साथ निकल जाती है, बहुत सारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाती है, लेकिन एंजाइम ट्रीटमेंट से मैक्सिमम एलर्जिक एसिड एक्सट्रैक्ट होके आपके लिए अवेलेबल किया जाता है। देन कंसंट्रेटेड प्रोसेस, देन इंग्रेडिएंट प्रोसेस। समझने वाली बात यह है कि इंग्रेडिएंट प्रोसेस एंड स्टरलाइजेशन प्रोसेस के लिए स्टेबल क्वालिटी कंट्रोल के थ्रू प्रोडक्ट लिया जाता है। सो क्लियर है, इस प्रोसेस के थ्रू मैक्सिमम एलर्जिक एसिड अवेलेबल कराती है एटमी पोमीग्रेनेट मिक्स्ड फ्रूट जेली में। इस प्रोसेस से आपको डबल अमाउंट में एलर्जिक एसिड मिलती है। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मैं अनार ही खा लेता हूँ। यस, ऑफ कोर्स आप खा सकते हो, लेकिन हम जो अनार खाते हैं उसमें और एटमी के पोमीग्रेनेट मिक्स फ्रूट जेली में जो अंतर है, जो डिफरेंस है, उसको समझना इम्पॉर्टेंट है। तो बात हम प्योरिटी की कर रहे थे, तो ये अंटालिया टर्की की पोमीग्रेनेट है।
वहाँ का एयर सबसे ज़्यादा क्लियर है। यही रीज़न है कि जो पोमीग्रेनेट अंटालिया में होती है उसकी प्योरिटी सबसे ज़्यादा होती है। किसी भी फ्रूट वेजिटेबल को जब आप फ्रेश एयर, गुड सनशाइन मिलता है और एक्यूरेट सी लेवल पे उगाए जाए तो ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की मेडिसिनल वैल्यू बहुत ही बढ़ जाती है। वर्ल्ड का बेस्ट पोमीग्रेनेट अंटालिया टर्की में पाया जाता है। यहाँ मैं आप सबका ध्यान ले जाना चाहूँगी कि एटमी जिस भी इंग्रेडिएंट फ्रूट्स वेजिटेबल से प्रोडक्ट बनाती है वो कहाँ से बेस्ट मिल सकता है। सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो प्रोडक्ट जहाँ बेस्ट मिलेगा वहाँ से कलेक्ट किया जाएगा और उसके बाद उसको कन्वर्सन करके डिस्पेंसिंग फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं कि कैसे डिस्पेंस किया जाए विद द हेल्प ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी साइंस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आप समझ गए होंगे कि मार्केट से ली जाने वाली पोमीग्रेनेट और एटमी पोमीग्रेनेट में यूज़ किया गया पोमीग्रेनेट में क्या फ़र्क है। मैं यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगी कि एटमी पोमीग्रेनेट मिक्स का दोष है से लगभग 780 ग्राम अनार के दाने से जो जूस निकाला जाता है उसके बराबर है। ये तो हुई क्वालिटी की बात। अब करते हैं प्रैक्टिकलिटी की बात। यदि मैं पूछूं क्या हर दिन 780 ग्राम अनार के दाने का जूस निकालना और पीना संभव है? आप एक दिन कर सकते हैं, 2 दिन कर सकते हैं, बट ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है और आप थक कर जूस पीना ही छोड़ देंगे। क्योंकि सही कहा ना मैंने। अब इस एटमी पोमीग्रेनेट मिक्स का मैं इंग्रेडिएंट एलिजिक एसिड के बराबर में बात करते हैं और समझते हैं कि ये क्या है और ये कैसे हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हेल्पफुल है। एलिजिक एसिड की एक खास प्रॉपर्टी होती है कि वो हमारे बॉडी के नॉर्मल सेल को कैंसरियस सेल बनने से रोकती है। तो एक बात तो तय है कि इस एटमी पोमीग्रेनेट मिक्स फ्रूट जेली के कंजम्पशन से कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है। बट अगर किसी को कैंसर है तो क्या कंजम्पशन ऑफ एलिजिक एसिड कुछ मदद करती है? जहाँ तक मैंने पढ़ा है और समझा है, एलिजिक एसिड काफ़ी हद तक कैंसर को बढ़ने से रोकने में मदद करती है। एटमी पोमीग्रेनेट मिक्स फ्रूट जेली एक जेली फॉर्म में है और इसमें मैंगो, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल में मिलने वाली एलिजिक एसिड भी होती है। ये एटमी पोमीग्रेनेट मिक्स फ्रूट जेली हमारे स्किन पर भी बहुत अच्छे से काम करती है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि स्किन का रोल हमारे लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्किन को ही सबसे पहले एक्सटर्नल स्ट्रेस, जर्म्स एंड टेम्परेचर का सामना करना पड़ता है। अब मैं बात करूं कि व्हाट इज द कॉज ऑफ स्किन एजिंग और एजिंग, रिंकल्स, सैगिंग क्यों होती है। रीजन इज अल्ट्रावायलेट रेज, सनलाइट, पॉल्यूशन। ये सब आपके स्किन सेल को डैमेज करती है, स्किन के सेल को के मॉइस्चर को कम कर देती है। मॉइस्चर कम होते ही स्किन की एजिंग स्टार्ट हो जाती है। सोचने वाली बात है कि हेल्दी स्किन क्यों इम्पोर्टेंट है। सिंपल सी बात है, हेल्दी स्किन मेंटेन है तो आप ब्यूटीफुल दिखते हो, स्किन में इलास्टिसिटी बनी रहती है, आप अट्रैक्टिव दिखते हो। बट नॉर्मली हमारे ऊपर स्किन में 15 से 20% स्किन में मॉइस्चर की बहुत कमी होती है और वो बन जाती है डेड स्किन। मॉइस्चर की डेफिशिएंसी होते ही हमारे स्किन की इलास्टिसिटी कम होती है एंड रिंकल्स होने लगते हैं।
सो आपको ग्लॉसी स्किन एंड चार्मिंग पर्सनालिटी बने रहने के लिए एटमी आपकी हेल्प कर रही है। बट फिर भी आपको अपनी वाटर इनटेक अच्छी रखना चाहिए विथ बैलेंस डाइट। एटमी पोमीग्रेनेट मिक्स फ्रूट जेली वन ऑफ द बेस्ट फूड सप्लीमेंट है और 100% नेचुरल सप्लीमेंट है। एटमी का ये प्रोडक्ट पोमीग्रेनेट मिक्स फ्रूट जेली वुमेन के लिए एक आशीर्वाद के समान ही है। कैसे, मैं बताने की कोशिश करती हूँ। नॉर्मली जैसे ही हम सब जानते हैं कि 30 ईयर्स से पहले वुमेन की हार्मोन अच्छी तरह से सीक्रेट होती है। एस्ट्रोजन हार्मोन, एफएसएच, फॉलिकल हार्मोन एक्यूरेट अमाउंट में रिलीज होती है। बट जैसे ही वो 35 एज को टच करती है, ये सारे हार्मोन शार्पली फॉल होने लगती है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर हार्मोन की कमी होगी तो उस स्टेज को हम कहते हैं मेनोपोजल स्टेज। यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि मेनोपोजल स्टेज आने के 10 साल पहले और 10 साल बाद, मीन्स अगर किसी को मेनोपोज 45 की एज में हो रही है तो 35 से 55 एज के बीच में मेनोपोजल का बहुत सारा सिम्टम दिखते हैं, जैसे वेट गेन, हेडेक, heavy night sweating, skin itching, joint problem, back pain, urinary problem, psychological problem में dizziness, interrupted sleeping pattern, anxiety, poor memory, depressive mood, mood swing, etc. और उस सिम्टम में फीमेल को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि शायद आपके पार्टनर या आसपास के लोग इस बात को समझ ही नहीं पाए। जस्ट इमेजिन, एक फीमेल 20 इयर्स इंटरनली सफ़र करती है डिफरेंट सिम्टम डिजीज से। जस्ट थॉट, इफ एक फीमेल की वो 20 साल 20 इयर्स बहुत अच्छे से निकल जाए तो क्या क्या कर सकती है। इमेजिन एक ह्यूमन लाइफ एवरेज एज क्या होती है, 70 से 80 इयर्स, और यदि मैं 60 के ऊपर वाली लाइफ को डिस्काउंट कर दूं तो एक वुमेन 33% ऑफ हर एक्टिव लाइफ प्रॉब्लम में निकाल रही है। तो फिर जिंदगी में क्या होगा उसका। मैक्सिमम इंडियन लेडीज इस फेज से गुजरती है। 79.8% कोरियन फीमेल को ये प्रॉब्लम होती है और मेनोपोजल के सिम्टम दिखती है। एटमी ने कोरियन वुमेन को देखकर ही ये प्लान किया कि कुछ ऐसी चीज़ बनाई जाए जो फीमेल के लिए वरदान हो, क्योंकि हार्मोनल डिसबैलेंस की प्रॉब्लम आज की डेट में सबसे ज़्यादा दिखने को मिलती है। एटमी ने उस प्रॉब्लम को आगे बढ़िए लगा दिया है। मैं कहना चाहती हूँ कि आपकी 20 साल 20 इयर्स एटमी ने वापस दे दिया है, क्योंकि 35-55 इयर्स एक ऐसा समय है जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम को लेकर फैमिली के साथ अच्छी जीवन जी सकती हैं, क्योंकि 35-55 इयर्स में जब एक फीमेल अपने वैल्यूएशन क्रिएट करती है तब तक आपकी बॉडी की वैल्यूएशन कम हो जाती है बिकॉज ऑफ मेनोपोजल सिंड्रोम। Before 10 years and after 10 years, middle-aged women are at higher risk of developing social anxiety when estrogen level sharply decline. So मैं सजेस्ट करना चाहूँगी कि मिडिल एज वुमेन इस स्टेज को हैप्पीली क्रॉस कर सकती है विथ एटमी पोमीग्रेनेट मिक्स्ड फ्रूट जेली। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, आज से आप एटमी पोमीग्रेनेट मिक्स्ड फ्रूट जेली 2 मंथ्स लीजिए और आप लाइफ के कीमती समय अपने हेल्दी बॉडी के साथ, फैमिली के साथ बिताएं। बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर
and also cheaper than cure. Thank you very much. ये थी हमारी प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन। आशा करता हूं आप सभी को पसंद आई होगी। चलिए, इसी के साथ हम आज के सेमिनार का अंत करते हैं। जैसे आप सभी को पता है, हम सेमिनार का अंत करते हैं कंपनी मोटो के साथ। तो क्या आप सभी तैयार हैं कंपनी मोटो के लिए? यस, चेरिश द स्पिरिट, क्रिएट द विजन, फॉलो द फेथ, सर्व इन ह्यूमिलिटी। कम ऑन, लेट्स डू इट।